Okay. Last class we have discussed some results of countable sets, denumerable sets. Okay. Today we will discuss from here. Corollary 6.4. A subset of a countable set is countable. Okay. What is the countable set? A countable set is if a set is either a finite set or a denumerable set. Okay. And denumerable set means denumerable set. If a set is called denumerable if we find a bijection from that set of नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ हमें बाइजेक्शन मिलता है तो उसी सेट को हम कहते हैं डिन्यूमरेबल सेट या तो काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, काउंटेबली इनफाइनाइट या तो डिन्यूमरेबल सेट. और फाइनाइट तो फाइनाइट ही जो काउंट कर सकते हैं आप, तो फाइनाइट हो गया. और डिन्यूमरेबल इन सब जो है सबको क्या कहते हैं? काउंटेबल. A subset of a countable set, yeah, every subset of a countable set is countable. Let A be any countable set and let B be a subset of A. अब हमारा B को हमें प्रूफ करना है कि B countable है. Okay, subset को countable प्रूफ करना है. So if B is finite, then there is nothing to prove. Okay, then there is nothing to prove. क्योंकि finite है, finite हो गया तो automatic countable हो गया. ठीक है. Now if B is infinite subset of A, finite नहीं है तो B infinite. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? Then A must be a countably infinite subset. Okay, इसी finite set के तो subset infinite नहीं हो सकता है ना. इसका मतलब B को हम infinite ले रहे हैं तो इसका, और B is a subset of A, तो A क्या होगा? क्या A finite हो सकता है? Never. Okay, subset को infinite ले रहे हैं तो superset क्या होगा? Superset is again an infinite set. Okay, so therefore A must be countably infinite set. This means that B is subset of a denumerable countably infinite. Okay, एक तो countable है और infinite कह रहे हैं हम इसको, तो that means it is B, A must be countably infinite. Okay, this means that B is a subset of a denumerable set. Countably infinite means denumerable set. Okay, therefore B is either finite or denumerable. Okay, countably ये है हमारे पास एक रिजल्ट. Every subset of a denumerable set is either finite or denumerable. ये भाई थ्योरम 6.3 देख लेना पीछे. थ्योरम 6.3 आ जाओ सुनो सही से तबीयत खुश हो गई. सबसेट ऑफ ए denumerable set is either finite or denumerable. Okay, so therefore that means B is a subset of a denumerable set, and by that theorem 6.3 it is either finite or denumerable. but finite तो है नहीं, अभी हम ऊपर ले चुके हैं. ये B को finite ये infinite consider कर रहे हैं, but B is not finite, therefore B is denumerable. Okay, thus B is either यहाँ either finite or denumerable. That means B is countable. Okay, या तो B finite या तो B denumerable. Okay? So इन दोनों केसेस में क्या है? फाइनाइट को भी काउंटेबल कहते हैं और डिन्यूमरेबल को भी काउंटेबल. तो या तो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो, तो बी अल्टीमेटली हमें ए के जो सबसेट है वो आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, ये दोनों को ही काउंटेबल कहते हैं. ओके, फाइनाइट को भी काउंटेबल और डिन्यूमरेबल भी काउंटेबल. नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, a countable union of finite sets is countable. A countable union of finite sets is countable. finite sets आप लीजिए बहुत सारे, इन सब की यूनियन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स. ये नहीं है कि 10 फाइनाइट सेट्स. काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स. ओके, तो जितना फाइनाइट सेट्स आप ले लीजिए सबकी जो है आर्बिट्ररी कलेक्शन. ओके, काउंटेबल कलेक्शन आप ले लीजिए तो इन सबकी यूनियन जो है वो अगेन काउंटेबल. Say let T equal to S I belongs to N. Okay, I belongs to N means कितने हैं? कोई फिक्स तो नहीं है ना. N के N में कमी थोड़ी है नंबर की, मतलब S1 S2 S3 S4 S10 S100 ऐसे जितना N के N में नंबर है उसी के लिए S1 S2 S3 ले लीजिए. So T equal to S I
be a countable collection of finite sets. Each is a finite set. Okay. Let C equal to union S union SI. Okay. सबकी यूनियन. अब हमें ये प्रूफ करना है कि C is countable. ओके. सबकी यूनियन को प्रूफ करना, ये ना कह रहा है काउंटेबल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स. तो ये फाइनाइट सेट्स है. Okay. There was some problem, I think. So C equal to, now we need to prove that C is countable. Let's see if C is 5. Okay. If C, then C is countable trivially. Okay. If C not equal to 5, then define like this: A1 equal to S1, A2 equal to S2 minus S1, S3 equal to A3 equal to S3 minus S1 union S2. सब में से जो दूसरा सेट है उसको माइनस करिए. A1 से A1 S1, A2 से A2 S2, लेकिन उसमें से S1 के एलिमेंट्स को माइनस करिए. फिर A3 ऐसे चूज करिए जो S3 में से S1 का भी कॉमन ना एलिमेंट हो, S2 का भी एलिमेंट ना हो. मतलब S1 यूनियन S2 जो है, जो एलिमेंट है उनको आप निकाल दीजिए. ठीक है. इस तरह की आप चूज करिए. A4 जो होगा आपका क्या होगा? S4 माइनस S1 यूनियन S2 यूनियन S3. ओके. सबके जितने ऊपर के सेट से जितने मेंबर्स है वो इसमें नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? ये जो आपका A1 A2 A3 है, ये सब डिस्टिंक्ट हो गया. इसमें कोई किसी के एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ. यहाँ जैसे है S1 S2, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम. हो सकता है कुछ मेंबर फाइनाइट बस मालूम है. 1 2 3 4 5 मान लीजिए. दूसरा सेट मान लीजिए 1 7 8 9, तो 1 1 कॉमन हो गया. तो उसमें कॉमन हो सकता है SI में. बट ये जो आपने AI कंस्ट्रक्ट किया है, दिस कंस्ट्रक्शन मेक्स दिस सेट AI disjoint, okay, and mutually pair disjoint. Okay. And also AI are finite. ठीक है. A1 S1 फाइनाइट तो A1 फाइनाइट है. A2 देखिए S2 फाइनाइट है, उसमें से भी कुछ माइनस कर रहे हैं आप एलिमेंट. ओके. तो A2 इज आल्सो फाइनाइट. तो ये AI के बारे में हम ये कह सकते हैं, नाउ वी विल से दैट ऑल AIs आर फाइनाइट एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट. ये हम म्यूचुअली डिसजॉइंट तो हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया. ओके. फाइनाइट तो वैसे ही है, SI फाइनाइट है, तो AI फाइनाइट है. ओके. नो प्रॉब्लम. फाइनाइट से भी कुछ कम कर दो और अगेन फाइनाइट, बट दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट. यहां हम गारंटी ले सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि these sets are mutually finite, mutually disjoint. Okay. And so on. A4 A5 ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करिए आप, क्योंकि SI के नंबर कम है ही आपके पास. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है SI. S1 S2 S3 S4 S100 S1000 S1 लाख, जितना चाहे आप, कोई कमी नहीं है आपके पास, क्योंकि कलेक्शन जो है I कहां से ले रहे हैं आप? N से. N में नंबर की कोई कमी नहीं है हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर. तो इसी तरह का सेट बनाते जाइए आप. A1 A2 A3 A4 A5 and so on. Then the sets AI are finite and pairwise disjoint. Say A1 equal to, आप इसी तरह का फाइनाइट है तो इसको नंबर रख दिए A11 A12 up to dot dot N1. मान लीजिए इसमें N1 नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? इसमें N1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. इसी तरह का A21 A22 A2 N2, इसमें N2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. So then B equal to union of AI can be written as a sequence as follows. B equal to, ये सब A1 के मेंबर यहाँ रख के पहले, फिर A2 के मेंबर रख के अप टू N2 तक, फिर उसके बाद A3 के मेंबर, ऐसे करके आप इसको एज ए सीक्वेंस अरेंज करिए. ठीक है. एंड दीज एलिमेंट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट. ओके. एंड दीज आर डिस्टिंक्ट, याद रखिएगा. ठीक है. So define F from B to N as F of Aij equal to N1 plus N2 plus N I minus 1 plus J. Then we will see that, then we can see that F is bijective. Okay. ये मैप हम bijective दिखाई दे रहा है. ये यहाँ है, ये देखिए यहाँ नीचे मैंने लिख रखा है कैसे bijective है. A11
goes to 1 1 1 a 1 1 f of a 1 1 कहाँ जा रहा है, किस नेचुरल नंबर पे, i j है ना 1 1, तो देखिए 1 माइनस 1 0, इसका मतलब ये नहीं है, यहां से नहीं ले सकते हम, प्लस j 1 तो ओनली 1, ओके, दिस इज a i a 1 1 goes to 1, इसी तरह का a 1 2 देख लीजिए, 1 है तो ये सब 1 है तो i माइनस 1 0, मतलब यहां से नहीं लेना है n1 n2, और 2 है तो प्लस 2, मतलब इट गोज टू 2, इसी तरह का a i n1, ये वाला जो है a i n1, दिस i n1 goes to n1, फिर a 2 1 goes to 2 माइनस 1 1, इसका मतलब यहां से n1 तक लेंगे, ये सब नहीं, ओके, n1 और j के जगह में कितने हैं 2 1, एक j के जगह में 1 है, तो दैट मीन्स ये आउटपुट क्या हुआ आपका, यहां से n1 और यहाँ प्लस 1, तो दिस इज n1 प्लस 1, तो a21 goes to n1 plus 1, a22 goes to n1 plus 2, like this, okay, so देखिए you see 1 2, जो भी नंबर होगा यहाँ, कोई नंबर है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सो इस n1 कोई भी नंबर होगा 10, सपोज 10 है, यहाँ 10 एलिमेंट सपोज पहले सेट में, तो ये n1, इसका मतलब n1 10 हो गया, तो ये दूसरा मेंबर कहाँ, देखिए ये 21 कहाँ मैप हो रहा है 10 प्लस 1 11 पे, ये 10 प्लस 2 12 में, तो ऐसे कर करके 1 2 3 4 5 6 10 11 12 ऐसे करके सब कवर हो रहा है आपके लिए, so therefore this map f from b to n as bijective, by defined by this map it is bijective, hence b is b क्या हो गया, जो bijective हो गया तो b को क्या कहेंगे, ए फ्रॉम बी टू एन में बाइजेक्टिव मैप है तो बी क्या होगा इसके, व्हाट वी कैन से अबाउट बी, बताइए, कोई बताइए, एनीवन, अंकित शर्मा बताइए, अरे कब पढ़ते हो या नहीं, बाद में कभी जब डेफिनेशन बताते हैं इसके बाद कभी देखते हो या नहीं तुम लोग, तो सिंपल है भाई, किसी सेट से नेचुरल नंबर पे बाइजेक्शन है तो उस सेट को क्या कहते हैं, ये नहीं मालूम तो बड़ा बड़ा थियरम क्या पढ़ना है तुम लोग, बी को उसी सेट को डिन्यूमरेबल सेट का डेफिनेशन है ये, a set is said to be denumerable if there exists a bijection from this set to natural number, सबसे पहली बार, और मैंने उसी दिन इतने बार बताया, पता नहीं कितनी बार ये चीज बताया, और हर जगह इस्तेमाल कर रहा हूं, ओके, बी डिन्यूमरेबल हो गया, तो बी डिन्यूमरेबल हो गया, डिन्यूमरेबल सेट को क्या कहते हैं, आगे डिन्यूमरेबल हो तब भी काउंटेबल, ठीक है, या फाइनाइट हो उसको भी काउंटेबल कहते हैं, डिन्यूमरेबल हो तभी काउंटेबल कहते हैं, ठीक है, वो काउंटेबल में आ जाता है, so therefore b is countable, but b is the union of all the sets in the t के अंदर जो सेट्स हैं वो सब की यूनियन b है, दैट मींस b इक्वल टू हमारा c हो गया, यहाँ b ऐसे लिया, देखिए वो अल्टीमेटली si के यूनियन है, ये जो यूनियन ऑफ ai वो अल्टीमेटली यूनियन ऑफ si है, si के यूनियन t है, और यहाँ b है ai के यूनियन, तो b और c वहां लिया था, c इक्वल टू यूनियन ऑफ si, और ये c ऑफ यूनियन ai, ये दोनों इक्वल है, देखिए कन्विंस रहिएगा पहले, यूनियन ai इक्वल टू यूनियन si, यूनियन si को हमने c नाम रखा है और यूनियन ai b है, ओके, तो दैट मींस b इक्वल टू c, यहाँ b के बारे में हमने कहा b काउंटेबल है और b इक्वल टू c प्रूफ हो गया, सो देयरफॉर c इज काउंटेबल एज क्लेम, ये मैप है उसका, जो कैसे f from b to n कैसे it gives natural numbers, okay, you see here. Now this theorem, let a1 a2 a3 be a sequence of pairwise disjoint denumerable sets, then their union a1 a2 union a3 union this all union sequence of pairwise disjoint denumerable sets, देखिए ये सब conditions है सब, they equal to union ai, I belongs to n is denumerable, अब आइए इसमें पहले प्रूफ,
क्लेम एस इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई, सबकी यूनियन को हमें डिन्यूमरेबल प्रूव करना है। ओके, सपोज ए वन इक्वल टू डिन्यूमरेबल है तो कोई हम इसको किसी एक सीक्वेंस पे लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस में। ठीक है, कभी भी डिन्यूमरेबल सेट हो आपको वो इनफाइनाइट सेट्स में आप लिख सकते हैं। सपोज ए वन इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, अप टू डॉट, इसी तरह चलता जा रहा है। ए टू इक्वल टू ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, लाइक दिस। ओके, डिफाइन डी एन is equal to aij, I plus j equal to n greater than 1. So you see example d2 equal to a11, d3 equal to a12, a21, sorry ये d2 है ये, sorry नहीं sorry d3. Okay, d2 a11 singleton, d3 a12, a21, this is d4. Okay, याद रखिएगा ये सफिक्स में जो इंडेक्सेस है इसके साम है। 1 plus 3 4, 2 plus 2 4, 3 plus 1 4, तो इस इज d4। ओके, यहाँ ये d3 ठीक है, ये d4 है। I प्लस जे इक्वल टू n, देखिए उसी को हम dn कह रहे हैं, मतलब ये जो नीचे आया था देखिए आई जे है। ओके, इस सब की इसकी साम को हम n ले रहे हैं, I प्लस जे इक्वल टू n, तो 1 प्लस 3 4, ये 4 है बेसिकली। ओके, एंड सो ऑन d5 d6। ओके, नोट दैट ईच dn इज फाइनाइट। अब देख लीजिए सब dn फाइनाइट, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें तीन है, d4 में तीन है, d5 में 4 है, d6 में 5 एलिमेंट्स है, d7 में 6 एलिमेंट्स है, dn में कितने होंगे, n-1 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह का सारे सेट जो है वो हमारे फाइनाइट है। ओके, सो नोट दैट ईच dn इज फाइनाइट। ओके, एंड इन फैक्ट dn हैज n-1 एलिमेंट्स। Then by problem 6.10 देखिए इनफैक्ट dn हैज n-1 एलिमेंट्स। मैंने कहा नहीं था d5 होगा तो 4 एलिमेंट्स होगा, d6 होगा तो 5 एलिमेंट, यही चीज है। dn हैज n-1 एलिमेंट्स। सो देन बाय प्रॉब्लम 6.10, अभी जो लास्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है, ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल। अब यहाँ सब क्या है, ये सब फाइनाइट है, तो फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट सेट्स के यूनियन है ये सब। ये देखिए यूनियन ऑफ ऑल डिजिट्स, यूनियन ऑफ ऑल डिजिट्स। देन ये इस प्रॉब्लम्स क्या कह रहा है, ये सारे फाइनाइट्स के यूनियन क्या होगा, अगेन काउंटेबल, जो लास्ट 10 प्रॉब्लम अभी जो कराया था ये, ठीक है, क्या था वहां कि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल। तो यहाँ देखिए ये डीजे सब फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट सेट्स के काउंटेबल यूनियन है। ओके, so therefore this collection is again T means T is countable. On the other hand, the union of all the finite digits is the same as the union of all edges. ये तो डीजे में देखिए सारे एलिमेंट देखिए, यहाँ से देखिए a11, a12, 13, a12, 13, फिर आगे कहां से a13, a22, a31, ऐसे कर करके सारे एलिमेंट ये कवर कर रहा है। डी जो है सब a1, a2, a3, a4 के सारे मेंबर्स को d1, d2, d3, d4 में सब में बांट दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल di के जो यूनियन है हमारे पास डीजे, जे ले ले या आई ले ले, ऑल डीजेस के जो यूनियन है वो किसके यूनियन के बराबर है, ऑल एजेस के यूनियन के बराबर है। सारे एजेस के एलिमेंट्स को हमने ऐसे डी में बांट दिया, तो डी के सबके यूनियन जो है वो ए सबके यूनियन के बराबर है। यही कहना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द यूनियन ऑफ ऑल द फाइनाइट डीजेस is the same as the union of edges, or edges के union और s, okay, और digits के union t। तो इसका मतलब t और s बराबर है, t equal to s, बट t को हमने क्या प्रूव किया है प्रॉब्लम 6.10 से, प्रॉब्लम 6.10 से d काउंटेबल है, दैट मींस, और t equal to s है, तो t काउंटेबल है मींस s काउंटेबल, तो ये प्रूफ हो गया, s काउंटेबल प्रूफ। ओके, now this is a countable union of countable sets is countable. A countable union of countable sets is countable. तो ये ऐसे ही ले लीजिए countable के collections. Let A and B count be a family of countable sets such that I equal to I 1 2 3 running is countable. We may enumerate the elements of A and S
जब डिन्यूमरेबल है सब काउंटेबल है, ठीक है, सबके हम ऐसे ले लिए एलिमेंट्स A1 इनफाइनाइट सीक्वेंस, ऐसे A11 A12 A13 14 A22 A21 A22 A23 24 25 this. Okay, you can put arrows. 1 goes to this, 2 goes to here, 3 goes to here, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like this way. You can move all the natural numbers, you can map with these two. Here are some descriptions. If we run out the elements in any set, that is if any set is finite, we just put down x in the spot where an element should go. Okay, उसमें क्रॉस मार्क दीजिए। कोई सेट आपको फाइनाइट है, देखिए यहाँ कहाँ क्या कहा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। याद रखिएगा, काउंटेबल सेट्स मींस दोनों हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है उसमें। ओके, काउंटेबल यूनियन जो है वो उसमें कुछ फाइनाइट सेट्स भी हो सकते, ठीक है। सारे फाइनाइट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास ऑलरेडी थ्योरम है, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल। ओके, तो वो तो हो गया खत्म। अब इसमें मिक्स हो सकता है, सब डिन्यूमरेबल है, मान लो बीच में से एक आध फाइनाइट भी है, तो यही कह रहा है कि किसी सेट में, मान लीजिए किसी सेट फॉर एनी सेट, कोई सेट सपोज इनमें से कोई सेट फाइनाइट कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हम सिर्फ काउंटेबल की बात कर रहे हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। तो काउंटेबल सेट्स में हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, वी हैव, ओके, वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनाइट्स एज वेल एज डिन्यूमरेबल। सो जस्ट पुट एक्स, इफ सेट कोई यहाँ जैसे कोई सेट इसमें आप एलिमेंट यहाँ नहीं है, A2 मान लीजिए फाइनाइट है, सिर्फ A21 A22 रख के फिर सब में क्रॉस डाल दीजिए, जितने जगह है आपके पास, ऐसे करके आप इसके साथ अरेंज कर लीजिए। So this is in the above Aij stands for jth element of ith set. Let us define the height of the element Aij to be I plus j. Thus height of A11 is 2, also A12 A21 are the only elements of height 3. Okay, देखिए 3 है, 2 plus 1 and 2 plus 1 plus 2, these are height 3. इसी तरह का यहाँ exactly n elements namely these of height n plus 1, n plus 1 में n elements है, या n height के n minus 1 elements है। Therefore we arrange the elements of union an according to their height as follows. height के हिसाब से हमने सबको अरेंज किया, A11 A21 A12 A31 A22 A13 A41 A32 A23 A14, सबकी हाइट 5 है, देखिए सबकी हाइट n plus 1 है यहाँ। ओके, सो फ्रॉम दी अबव स्कीम इट इज डिवाइडेड A P Q, मान लीजिए इसमें इंडेक्स को हम ऐसे करें, नीचे जो है A P Q is the qth element of P plus Q minus 1th row. It can be seen from here, from this scheme. Now, thus all the elements of union n have been arranged in an infinite sequences. A union B, A11, A21, A12, A31, A32, A22, A13 like this. You can arrange this here. In fact, the map F from union an to n defined by this, a map F of A P Q equal to P plus Q minus 2, P plus Q minus 1 divided by 2 plus Q. ये जो है it will give a natural number. Okay. If A P Q देख लीजिए, A11 क्या, कहाँ A11 क्या एलिमेंट मिलेगा, A11 1 plus 1 2, 2 minus 2 0, 0 by 2 is 0, और Q के जगह में भी 1 है तो प्लस 1, 0 plus 1 is 1, तो A11 goes to 1, similarly A21 goes to 2, A12 goes to 3 like this, A31 goes to 4, A22 goes to 5, A13 goes to 6 like this. So it is a 1 1 and 1 2 map from union an to n by this map. Okay, so gives an enumeration of union an. इसका मतलब union an के हर मेंबर्स को हम नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट कर दिया 1 by 1. ओके, हर एक 1 1 मैप बना दिया. So hence the union of countable. इसका मतलब क्या हो गया, union an n के साथ बाइजेक्शन मिला, we have bijection. Okay, so therefore union of countable family of countable sets is countable. Now we will start from this problem in the next class. Okay, theorem 6.7 set of rationals is enumerable. थोड़ा देख लीजिएगा, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर क्या और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं,
ओके, रेशनल नंबर की डेफिनेशन सही से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे चीजें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रेशनल नंबर की डेफिनेशन जितने प्रॉपर्टीज है सब इस्तेमाल करेंगे। इसे रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, इसकी सारी चीजें इन से आउट देख लीजिएगा, उसके बाद ही थियरम कर पाएंगे। ओके, ये जो डेफिनेशन ओके है सर। इसको सही से देखिएगा। रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, ये तो मैं क्यू प्लस लिखा है, सिंपली क्यू कैसे लिखते हैं रेशनल नंबर, ए बाई बी। ओके, पी अपन क्यू लिखते हैं। तो ये सब में कंडीशंस जो है वो सब देख लीजिएगा, क्या क्या कंडीशंस है। यहाँ क्यू प्लस है तो इसलिए क्यू प्लस लिखा हुआ है। ओके, वहां दोनों के जीसीडी कितने होना चाहिए, 1। कोई भी आप फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो उसके ऊपर के और नीचे के जो मेंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों के जीसीडी 1 होने चाहिए और दोनों जेड से होना चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स क्यू नॉट 0। ओके, तो ये सब देख लीजिएगा। फिर आगे ये करेंगे थियरम। तो रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर रेशनल नंबर्स के ऊपर और भी कुछ थियरम्स हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे इज फ्राइडे क्लास, इट इज टाइम इज ओवर नाउ। ओके, कितने हैं, 5 ही हैं।